Hello, dear learners. How are you all? I hope you all are doing good. So, here I welcome you all in your science class. In this class, we will move on a new chapter of your book, that is chapter number 6. And what's that chapter? The chapter name is Function of Different Parts of Plants. In this chapter, we will learn about the function of a plant, the function of different parts of plants. प्लांट्स के पार्ट्स का अलग अलग क्या फंक्शंस है. जस्ट ह्यूमन बॉडी आल्सो हैव डिफरेंट पार्ट्स एंड डिफरेंट पार्ट्स हैव देयर different functions like hand for ride and legs for running, walking and all these things. So in our human body also different organs are there, as similar as plants also have different parts. Let's see what parts and their functions. Okay, let's start. There are many different kinds of plants. We can see there are lots of different types of plants. Yes, plants are living things that need, we all know plants need, what the plants need? Water, light, nutrients and the air to live and can move, grow and reproduce. Plants is also like a living organism like us. We all know now. Plants also need water, plants also need sunlight, plants can make food for themselves. Yes, so plants need all these things if they want to survive. Plants need mostly water and sunlight because by this they can able to survive and make food. Okay, plants have different parts. Plants also have different parts like human beings also have stomach, small intestine, large intestines, heart, lungs. Yes, that's the same way the plants also have the parts. Plants have different parts, each with special functions. Plants provide people with food, shelter and other products. Gardening and farming are the method of growing plants. How we can able to grow plants? With the help of gardening and farming, we can able to grow. This is a picture of a part of a flower. Yes, here we can see a flower, here we can see a stem and in the beneath of the soil we can see a root. Root is important because it holds the plant. Yes, and the plant get all the nutrients from the soil. Yes, so that's why the role of a root is important. Also बाकी सब parts का भी role बहुत important है ना. चलिए सबसे पहले देखते हैं parts of a plant क्या है. Plants have three main parts: root, stems, leaves. Root, stems and leaves are the important one because बाद में fruits and flowers तो बाद में निकलते हैं. सबसे पहले root, stem and leaf. Roots usually grow underground. We already know soil के underground पूरी roots होती है. So root usually grow underground and absorb mineral and water from the soil. So what is the function of a root? Root absorb all the nutrients from the soil and water. आप कभी देखिए पानी देते हैं आप लोग तो कभी कभी होता है ना आप लोग उसकी पत्तियों में पानी देते रहते हैं प्लांट की. तो मम्मा कहती है पत्तियों में पानी देने से कुछ नहीं तो उसकी जड़ों में दो. तो जहां प्लांट है उसकी जड़ों में फिर आप पानी देते हो क्योंकि जड़ों में डायरेक्ट पानी जाता है. तो दैट मीन्स उसकी रूट्स एब्जॉर्व करती है वाटर, ना कि लीव्स. है ना, लीव्स तो पानी दोगे तो वो सुंदर बन जाती है बस, है ना, बट रूट्स एब्जॉर्व करती है पानी. ठीक है, इसलिए मम्मा कहती है रूट में पानी दो. द स्टेम, अब रूट क्लियर हो गया. जो अंडरग्राउंड होती है आपको दिखती नहीं है, जब आप प्लांट उखड़ के बाहर निकालोगे ना तब आप उसकी रूट देख पाओगे, है ना, ऐसे आपको नहीं दिखेगी. और ये भी होता है जितना बड़ा पेड़ उतनी ही बड़ी रूट उसकी जमीन के नीचे होती है ना. द स्टेम सपोर्ट द प्लांट एंड ट्रांसपोर्ट वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल. अब स्टेम का क्या काम होगा देखिए, ये समझ लीजिए ये मिट्टी है, यहाँ पे स्टैम्प है. तो जो जमीन के नीचे जो मिनरल्स एंड सब कुछ है इसको ट्रांसपोर्ट करना है पूरे पार्ट्स ऑफ प्लांट में. ये ट्रांसपोर्टेशन का काम करती है स्टेम, है ना, तना स्टेम. तो द स्टेम सपोर्ट द प्लांट एंड ट्रांसपोर्ट वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द रूट्स. तो रूट से सारा मिनरल्स लेके ट्रांसपोर्टेशन करने का काम आ जाता है फिर स्टेम का. एंड लीफ का काम होगा प्रिपेयर फूड फॉर द प्लांट. देखो सबको काम दे रखा है इधर पार्ट्स ऑफ प्लांट को. प्लांट में भी सारे पार्ट्स को अपना अपना काम पता है कि उसको क्या करना है. लीव्स को खाना बनाना है, स्टेम को ट्रांसपोर्टेशन करना है, रूट्स को अब्जॉर्व करना है जितना भी न्यूट्रिएंट्स है. ये तीन चीजें इंपॉर्टेंट है और आपको समझ आ गई होगी. चलिए, ओनली ग्रीन प्लांट्स कैन मेक देयर ओन फूड. दिस इज इंपॉर्टेंट. ओनली ग्रीन प्लांट्स कैन मेक द फूड, बाकी नहीं. अब देखते कैसे. A plant bears lot and lots of leaves because leaves make
फूड फॉर द प्लांट्स। देखते हो ना किसी प्लांट पे बहुत सारी लीव्स है, दैट मीन्स उसमें उनका खाना बन पाता है, उसकी वजह से। लीव्स नहीं होगी, देखते हो ना कभी लीव्स किसी पेड़ की मुरझा जाती है तो वो पेड़ भी मुरझा जाता है, क्यों? क्योंकि उसका जो मेन लीव्स थी जिससे उनको खाना मिल पा रहा था, ऑफकोर्स पानी वगैरह तो पहुंच जाएगा रूट्स के हेल्प से, पर जहां खाना बनता है लीव्स ही नहीं बची तो वो प्लांट भी मर जाता है, देखा होगा। और जैसे ही कभी प्लांट गिर जाता है कहीं, आपने देखा है आंधी तूफान में पेड़ गिर जाते हैं, जैसे ही वो पेड़ गिरते हैं उसकी पूरी की पूरी लीव्स भी सूख जाती है, देखिए ना, क्यों? क्योंकि उसको पानी नहीं मिल पाता, जो रूट्स, क्योंकि अब वो पेड़ अलग हो गया, अब रूट्स उसको पानी नहीं पहुंचा पा रहे, सनलाइट मिल रही है तो पानी नहीं मिल रहा, तो तब भी पेड़ जिंदा नहीं रह पाएंगे, है ना। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट होते हैं पेड़ की या ट्री की ग्रोथ के लिए। ओके, लीव्स आर ग्रीन, लीव्स ग्रीन ही क्यों होती है, पिंक क्यों नहीं होती? आप सोचोगे मेरा तो फेवरेट कलर पर्पल है, पर्पल कलर की लीव्स क्यों नहीं होती, है ना। सो लीव्स आर ग्रीन बिकॉज दे हैव ग्रीन सब्सटेंसेस कॉल्ड क्लोरोफिल। लीव्स में ग्रीन सब्सटेंस होता है क्लोरोफिल, इस क्लोरोफिल की वजह से ग्रीन कलर आपको उस पत्तियों का दिखता है, ठीक है। अगर उसमें जितना कम क्लोरोफिल होगा उसका कलर फिर ना ग्रीन से थोड़ा सा येलोइश आपको दिखने लग जाता है कभी कभी, है ना। तो यही होता है, तो ग्रीन कलर डिनोट करता है क्लोरोफिल का अमाउंट उसमें, तो क्लोरोफिल की वजह से। ओनली ग्रीन लीव्स विच कंटेन क्लोरोफिल कैन मेक द फूड। सिर्फ देखो कौन सा पेड़ सिर्फ खाना बना पाएगा, जो ग्रीन हो और जिसमें क्लोरोफिल। इन प्लांट्स अब बन कैसे रहा है, कौन बना रहा है? आपके घर पे तो मम्मा बना देती है, यहाँ कौन सी मम्मा है जो खाना बनाएगी, है ना। तो देखते हैं, ग्रीन लीव्स आर कॉल्ड द फूड फैक्ट्री और द किचन ऑफ अ प्लांट। तो प्लांट का किचन कहा जाता है ग्रीन लीव्स को, ठीक है, क्योंकि ग्रीन लीव्स की वजह से ही तो खाना बन पाएगा उनके घर में, जैसे आपका किचन होता है, यहाँ पे किचन है उनकी लीव्स, ठीक है। दिस इज बिकॉज प्लांट्स प्रिपेयर देयर फूड इन ग्रीन लीव्स, क्योंकि खाना तभी बनता है, और बनता कहाँ है? उनकी ग्रीन लीव्स में बनता है। द प्रोसेस थ्रू विच ग्रीन लीव्स प्रिपेयर द फूड, जिस प्रोसेस की वजह से खाना बन पा रहा है, देखिए ग्रीन कलर तो क्लोरोफिल की वजह से हो गया, और जो खाना बन पा रहा है पूरा, इस प्रोसेस को बोलेंगे फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस। क्लियर? अभी देखेंगे क्या प्रोसेस है वो, ठीक है। तो जिससे खाना बन पा रहा है, उस पूरे प्रोसेस को, जो जिस प्रोसेस से प्लांट खाना बना पा रही है, इस प्रोसेस को फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। दिस प्रोसेस टेक प्लेस इन सनलाइट, ये प्रोसेस तभी हो पाएगा जब सनलाइट होगी, क्योंकि खाना तभी बनेगा जब सन होगा, सन होगा खाना बनेगा, तो ही फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस हो पाएगा। ग्रीन लीव्स टेक इन कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एयर, आपको पता है ना ग्रीन लीव्स को कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए होती है ना, और हमको चाहिए होती है ऑक्सीजन, इसलिए ग्रीन लीव्स कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन देते हैं हमको, इसलिए बोलते हैं ना पेड़ उगाओ पेड़ लगाओ ऑक्सीजन मिलेगी, इसलिए मिलेगी। आज तो समझ में आ गया ना। चलिए, दिस प्रोसेस टेक प्लेस इन सनलाइट, ग्रीन लीव्स टेक इन कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एयर एंड वाटर फ्रॉम द सॉइल। देखिए ग्रीन लीव्स को कार्बन डाइऑक्साइड एयर से मिल गई, पानी कहां से मिल गया? रूट से मिल गया, ठीक है। टू प्रिपेयर फूड इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च, देखिए जो स्टार्च क्या होता है, जो खाना है इनका, स्टार्च खाना है, किसका खाना है? लीव्स का, जो लीव्स खाना बनाती है वो किस फॉर्म में बनाती है? स्टार्च के फॉर्म में, ठीक है। तो जो लीव्स से सनलाइट मिल गई प्लांट्स को, और रूट से मिल गया वाटर, और जो वो पूरा खाना बनाएंगे इसको बोल देंगे हम स्टार्च, जो प्लांट्स खाना बना पा रहे हैं। उसके बाद क्लोरोफिल इन द लीव्स ट्रैप सनलाइट ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। अब क्लोरोफिल का क्या काम हो जाएगा? हमने ये तो देखा था क्लोरोफिल ग्रीन कलर की वजह से हो पा रहा था, ग्रीन कलर लीव्स के क्लोरोफिल की वजह से हो पा रहा था, तो क्लोरोफिल इन ग्रीन इन लीव्स ट्रैप सनलाइट, क्लोरोफिल क्या करती है? सनलाइट को ट्रैप करके रख लेती है ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, है ना, ट्रैप करके रख लेती है। अब देखो ये एक फॉर्मूला लिखा है, इसमें क्या लिखने की कोशिश कर रहे हैं, ध्यान से देखिए। कार्बन डाइऑक्साइड लिया, तो अभी हमने देखा एयर से कार्बन डाइऑक्साइड लिया, प्लांट से वाटर, उसको सॉइल से मिल गया, ठीक है। क्लोरोफिल और सनलाइट उसको मिल जाएंगे, तो वो स्टार्च मींस खाना बना लिया, और ऑक्सीजन बन गई, ऑक्सीजन वो रिलीज कर देता है एयर में, है ना, और यही एयर से हम ऑक्सीजन ले लेते हैं, इसलिए बोलते हैं ना जहाँ पेड़ लगे होते हैं वहां आपको काफी ऑक्सीजन मिलती है, क्यों? क्योंकि वो रिलीज करती है जब वो खाना बना लेती है। मोस्टली रात के टाइम पे हम लोग क्यों वॉक पे निकलते हैं, उस टाइम पे माना जाता है कि रिलीज होती है, क्योंकि रात में तो वो खाना नहीं बनाते, है ना, दैट्स व्हाई। सो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर और क्लोरोफिल और सनलाइट की हेल्प से वो बना लेते हैं खाना। अभी हमने देखा यहाँ पे लिखा है देखो, दिस
प्रोसेस टेक प्लेस इन सनलाइट में होता है. ग्रीन लीव्स टेक कार्बन डाइऑक्साइड, ग्रीन लीव्स कार्बन डाइऑक्साइड लेती है फ्रॉम द एयर एंड वाटर फ्रॉम द सॉइल एंड प्रिपेयर कर देती है फूड. फूड बनाने के लिए इसको यही चाहिए, सनलाइट एंड पानी. चलिए, अदर फंक्शन ऑफ लीफ, और क्या फंक्शन होता है? खाना बनाना तो है, और क्या है? लीव्स प्रिपेयर फूड फॉर द प्लांट्स. खाना बनाएगी पहले तो, है ना, वो एक तरीके से मदर है, प्लांट की मदर है, क्योंकि घर में आपकी मदर है जो आपके लिए खाना बनाती है, तो लीफ में जो प्लांट की मदर होगी वो लीव्स हो गई. लीव्स नहीं है तो प्लांट मर जाएगा, खाना नहीं मिलेगा उसको, है ना. सो बिसाइड दिस लीव्स स्टोर द प्रिपेयर फूड. देखिए, स्टोरेज स्टोर करके भी रखती है. आपके घर में मम्मा भी किचन में स्टोर करके रखती है ना खाना, कि अब जैसे बाद में भूख लगेगी तो आपको मम्मा किचन में से दे देती है. वैसे प्लांट की जो लीव्स है वो खाना तो बनाती है, स्टोर भी करके रखती है. ठीक है. So beside this, leaves store the prepare food and also help in gaseous exchange and transpiration. अब ये क्या है? स्टोर कर लिया खाना, अब ये गैस एक्सचेंज क्या है? व्हाट्स दैट? यहाँ लिखा है, अभी पढ़ेंगे, डोंट वरी अबाउट इट. पहले इतना क्लियर हो गया खाना कैसे बनाया. अब देखते हैं वो स्टोर कैसे करती है और एक्सचेंज कैसे करती है गैस. गैस क्या, कौन सी गैस, क्या चीज? ठीक है, देखते हैं. स्टोरेज ऑफ फूड पहले देखते हैं, है ना. खाना लीव्स कैसे स्टोर करती है. देखिए, मतलब लीव्स का बहुत बड़ा काम आ गया है सर. खाना भी बनाएगी, स्टोर भी करेगी, गैस भी एक्सचेंज करेगी. ओके. The food prepared in leaves are used by the plant. Of course, plant उसी फूड को यूज करते हैं. एक्स्ट्रा फूड इज स्टोर इन द फॉर्म, ये तो हमने पढ़ा था ना, इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च. स्टार्च खाना है. लीव्स जो बना के रखती है अपने पास खाना, उस खाने को स्टार्च बोलते हैं. जो प्लांट्स अपना खाना बनाती है उसको स्टार्च बोलते हैं. तो जो खाली और बचा हुआ खाने को भी स्टार्च बोलते हैं, जो प्लांट स्टोर करके रखते हैं इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द प्लांट लाइक लीव, स्टेम, रूट्स, फ्रूट्स एंड सीड. देखिए, अपने खाने को सब जगह वो बचा के रखती है. ये नहीं अपने लीव्स में ही सिर्फ स्टोर करके रखी, लीव्स में, स्टेम में, रूट में, इन सब जगहों पे अपना खाना स्टोर करके रखती है ना. कि कभी ऐसा हो कि सनलाइट ना हो, है ना, तो वो कैसे खाना खाएंगे. फिर जो स्टोर खाना है तब वो उसको वहां से खाना मिल सकता है. अब देखते हैं लीव्स गैस एक्सचेंज कैसे करते हैं. गैस मतलब यहाँ पे दो गैसेस होगी, कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन. प्लांट्स लेते और छोड़ते कैसे हैं. आप कभी मन करे या कभी आपका हो लीव्स लेना, आप उसको लीव्स तोड़ना भी नहीं, आप देखना लीव्स में ना ऐसे छोटे छोटे छेद आपको दिखेंगे, देखना एक दिन, है ना. तो द लीव्स ऑफ अ प्लांट हैव टाइनी पोर्स. जैसे हमारी स्किन पे भी छोटे छोटे पोर्स होते हैं, आपको नहीं दिखते, वैसे लीव्स में भी ऐसे छोटे छोटे पोर्स होते हैं, छेद होते हैं. ऑन द लोअर सरफेस, उसकी लोअर सरफेस पे एक साइड आप देखोगे ना, एक सीधी और इस साइड आप देखना, उसकी लीव्स में छोटे छोटे छेद होंगे. These pores are called स्टोमेटा. जो लीव्स में छोटे छोटे छेद होते हैं उसको स्टोमेटा बोलते हैं. स्टोमेटा गैस को एक्सचेंज करता है, कार्बन डाइऑक्साइड को लेता है, ऑक्सीजन को छोड़ता है ना. ठीक है. जैसे हमारे बॉडी में तो लंग्स काम करती है ये सारी चीजों का, बट उनकी बॉडी में करता है स्टोमेटा, लीव्स की बॉडी में. एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक प्लेस थ्रू द पोर्स. पोर्स जो उसमें छेद होते हैं उसकी वजह से गैस एक्सचेंज होती है. ऑक्सीजन नीडेड फॉर रिस्पिरेशन एंड कार्बन डाइऑक्साइड नीडेड फॉर फोटोसिंथेसिस. ये तो आपको पता लग गया. ऑक्सीजन नीडेड कब होती है? रेस्पिरेशन में. एंड कार्बन डाइऑक्साइड कब होती है? फोटोसिंथेसिस में. ठीक है. आपको ये तो पता है, ऑक्सीजन इज नीडेड फॉर रेस्पिरेशन एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज नीडेड फॉर फोटोसिंथेसिस आर टेकन इन द थ्रू द पोर्स. मींस इन दोनों का जो एक्सचेंज होता है ये लीव्स के पोर्स में से ही होता है, स्टोमेटा की हेल्प से ही होता है ये एक्सचेंज. ठीक है. Plants are the only living things that give out oxygen and absorb carbon dioxide. देखिए, प्लांट्स ही कैसे हैं जो आप हमको ऑक्सीजन देते हैं और खुद कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं. और हम हमारे केस में क्या, हमें चाहिए ऑक्सीजन और हम कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं और भी गैसेस छोड़ते हैं, है ना. Thus it help maintaining a balance of carbon dioxide and oxygen in the environment. इसकी वजह से हमारा एक बैलेंस क्रिएट हो पाता है. अब हमने स्टोर देख लिया, लीव्स कैसे खाना स्टोर करती है और एक्सचेंज कैसे करती है गैस. अब देखते हैं ट्रांसपिरेशन क्या है. प्लांट्स लूज एक्स्ट्रा वाटर इन द फॉर्म ऑफ वेपर्स. ये आपने देखा है ना, प्लांट्स में अगर जो एक्स्ट्रा पानी होता है वो वेपर्स की फॉर्म में वो रिलीज करता है. तो प्लांट लूज एक्स्ट्रा वाटर इन द फॉर्म ऑफ वेपर्स थ्रू दीज पोर्स. तो प्लांट्स की जो बॉडी में जो एक्स्ट्रा पानी होगा वो किससे वो वी हैव टू रिलीज करेगा? ट्रांसपिरेशन की हेल्प से. ठीक है. वेपर्स के फॉर्म में वो एक्स्ट्रा पानी वहां से रिलीज कर देगा.
दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ट्रांसपीरेशन। इस प्रोसेस को, इस पूरे प्रोसेस को बोलते हैं हम ट्रांसपीरेशन। जब प्लांट्स के पास एक्स्ट्रा पानी आ गया, उसको लूज करना है, जब वो वेपर्स के फॉर्म में लूज हो रहा है। कभी कभी देखा है ना, ऐसे आपने देखा होगा लीव्स के ऊपर बूंदे बूंदे ऐसी, है ना, मींस एक्सेसिव वाटर हो गया अब उसका, ठीक है। मशरूम्स एंड मोल्ड्स आर नॉन ग्रीन प्लांट्स। देखिए अभी तो हमने देखा ना, जो ग्रीन प्लांट्स होंगे और जिसमें क्लोरोफिल होगा वही प्लांट खाना बना सकता है। बट मशरूम जैसे तो ग्रीन प्लांट है नहीं। मशरूम कभी देखा है? ये देख लो, नहीं देखा तो यहाँ देखो, कैक्टस देखो, कार्लॉट देखो, मोल्ड्स देखो, ऐसे प्लांट्स, इनका क्या होगा? दे डू नॉट हैव क्लोरोफिल। इनमें तो क्लोरोफिल है भी नहीं, ग्रीन कलर है भी नहीं इनका। दे कैन नॉट मेक देयर फूड। वो अपना खाना नहीं बना सकते खुद। वो किस पे? वो दे गेट फूड फ्रॉम डेथ एंड डिकेइंग प्लांट्स। मीन जो प्लांट्स मर जाते हैं ना, उससे उनको खाना मिलता है, क्योंकि खुद तो खाना बना नहीं सकते, है ना। बाकी जो ग्रीन प्लांट्स है वो तो खुद खाना बना लेते हैं, बट ये जो मशरूम्स है और ये सारे प्लांट्स है, ये अपना खाना खुद नहीं बना सकते। ये जो डेथ प्लांट्स है उस पर डिपेंड रहते हैं, उनको खाते हैं ये लोग, ठीक है। सम स्पेशल प्लांट्स, अब कुछ स्पेशल प्लांट्स देखते हैं। देयर आर सम कलर्ड प्लांट्स विच हैव हिडन ग्रीन कलर्स। ऐसे कुछ प्लांट्स है जिसमें ग्रीन कलर ना हिडन होता है, आपको दिखाई नहीं देगा वो ग्रीन कलर। फॉर एग्जाम्पल, आप इस प्लांट के बारे में बात किए, कराटोन। ये प्लांट आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, ये क्या है? ये आपको दिखेगा डार्क रेड कलर में, है ना। द डार्क रेड कलर सब्सटेंस हाइड द ग्रीन कलर ऑफ क्लोरोफिल। ये दिखता रेड कलर पर इसके अंदर क्लोरोफिल होता है, इसके डार्क कलर की वजह से हम देख नहीं पाते, ठीक है। दस द फूड इज प्रिपेयर, बट ये फूड, ये प्लांट अपना खाना खुद बना सकता है क्योंकि इसमें क्लोरोफिल है। पार्ट ऑफ अ लीफ, अब इसका लीफ के बारे में बात करते हैं, इसी प्लांट के बारे में बात हो रही है, इस प्लांट के, ठीक है। अब इसकी जो लीफ है ना, लीफ ब्लेड, द फ्लैट पार्ट ऑफ अ लीफ इज नोन एज फ्लीट ब्लेड। आप यहाँ एक इसका पूरा बड़ा सा लीफ निकाल के, ये फ्लीट ब्लेड है, ये मेन लीव्स है, ये साइड लीव्स। आपने देखा लीव्स अगर आप तोड़ोगे उसमें भी वेन्स दिखाई देगी आपको ऐसे ऐसे, है ना। सो ईच लीफ हैज वन मेन वेन एंड मेनी साइड वेन्स। एक मेन, देखिए मेन वेन, और ये क्या कहना चाह रहा है मैं आपको बताने की कोशिश करती हूँ। देखिए जैसे ये लीफ है ना, देखो एक तो आपको यहाँ दिख गया एक ऐसे लाइन, ये है इसकी मेन वेन बोलेंगे, है ना। और ये इसकी साइड वेन है, ये जो यहाँ यहाँ ऐसे ऐसे दिख रही है, ये साइड वेन है। दिख पा रही है आपको बेटा? दिख पा रही है? ऐसे ऐसे लीफ कभी देखना, आप तोड़ना मत, ऐसे ऐसे करके देखना। जो मेन वाली एक धारी सी निकल के आएगी, ये है मेन वेन उसकी, है ना। और ये इसकी सारी साइड वेन हो जाएगी लीफ की, ठीक है। समझ में आया? इतना क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? हो रहा है ना चीजें? चलिए, so each leaf has one main vein and many side veins. These veins transport water from the stem to all the part of the leaf. ये काम क्या करती है? ये वेन ट्रांसपोर्टेशन का काम करती है, ताकि सब जगह वेन्स हमारी भी देखते हो, ये वेन्स हमारी जैसे नसें आपको दिख रही है, वैसे प्लांट्स की नसें है जो ट्रांसपोर्टेशन का काम करती है। ओके, ऑन द सर्फेस ऑफ लीफ देयर आर मिलियंस ऑफ टाइनी पोर्स। इसकी लीव्स में बहुत सारे पोर्स होते हैं जिसको हम स्टोमाटा बोलते हैं, है ना। स्टोमाटा हमने देख लिया, अ सिंगल टाइनी पोर इज कॉल्ड स्टोमा। स्टोमा सिंगल पोर को बोलते हैं, स्टोमाटा सारे पोर्स को अगर हम काउंट कर दे वो सारे पोर स्टोमाटा है, और एक सिंगल पोर की बात करें तो वो स्टोमा है। एयर एंटर इनटू लीफ थ्रू स्टोमाटा, ये तो हमने पता ही है, स्टोमाटा से एयर अंदर बाहर आती है प्लांट्स के, और ये स्टोमाटा कहाँ होता है? लीफ में, ठीक है। हमने देखा था ना, लीफ स्टोरेज का भी काम कर रही थी, खाना भी बना रही थी, और गैस भी एक्सचेंज कर रही थी, और गैस एक्सचेंज स्टोमाटा की वजह से होती है। ये एक एक्टिविटी है, ठीक है। क्लोरोफिल इज एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस। देखो इसमें ना ये पूरा एक्सपेरिमेंट करके दिखा रखा है। अब ये तो आपको अच्छे से तभी पता चल पाएगा जब ये एक्सपेरिमेंट हम करेंगे कि किस तरीके से इसकी वजह से आप देखोगे किस तरीके से कलर चेंज हो जा रहा है ना, अगर आप ये सब चीजें ऐड कर देंगे इसमें, ठीक है। आयोडीन सॉल्यूशन अगर ऐड कर दिया, देख लो आयोडीन सॉल्यूशन से ये आपको पूरा देखेगा ब्लू ब्लैक कलर की हो जाएगा पूरा, है ना। ये तो आप रियल करेंगे तो बहुत मजा आने वाला है ये करने में, ठीक है। फिर देखो यहाँ पे भी आपको बता रखा है किस तरीके से एक्टिविटीज है, ठीक है। अब देखते हैं लास्ट में इंटरडिपेंडेंस ऑफ प्लांट एंड एनिमल। प्लांट एनिमल का जो इंटरडिपेंडेंस मींस किस तरीके से हम एक दूसरे पे डिपेंडेड है। देखिए प्लांट्स एनिमल पे डिपेंडेड है, एनिमल्स हम पे, हम प्लांट्स पे, इस तरीके से हम ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म एक दूसरे पे डिपेंडेंट है।
both plants and animal are interdependent on each others in their several ways for the survival. Of course plants animals पे dependent है, animals plants पे dependent है, because animals को खाना कहाँ से, प्लांट से ही मिल रहा है, उन्हीं को खा रहे, काउ से लेके बहुत सारे एनिमल्स आजकल है ना इन पे डिपेंडेंट। तो ग्रीन प्लांट्स आर मेन फूड प्रोड्यूसर्स। तो ग्रीन प्लांट्स है ना वो सबसे मेन प्रोड्यूसर्स है क्योंकि वो अपना खाना खुद बना पा रहे हैं। ऑल्सो ग्रीन प्लांट्स डू plants need out oxygen and take in carbon dioxide that is needed for photosynthesis. Animals take in oxygen and give out carbon dioxide during the breathing. ये तो पता है, एनिमल्स भी हमारी तरह, एनिमल्स को ऑक्सीजन चाहिए एंड कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं, और प्लांट्स को कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, ऑक्सीजन रिलीज करती है, ऑपोजिट है ये, ठीक है। Animals also help plants in spreading of seeds so that new plants can grow. Animals spread seeds को spread करने का काम करते हैं ताकि we have to see plants ज़्यादा से ज़्यादा उग पाए, can be grow in different places. Animals also help in formation of fruit. फ्रूट की फॉर्मेशन में भी आप यहाँ देख सकते हैं किस तरीके से दिखाया है, देख रहे हो। देखिए प्लांट्स यूज कार्बन डाइऑक्साइड दैट एनिमल्स गिव आउट, है ना। ह्यूमंस एंड एनिमल्स टेक ऑक्सीजन टू रिलीज बाय प्लांट्स। जो प्लांट से ऑक्सीजन निकलती है वो ह्यूमन बींग्स एंड एनिमल्स लेते हैं उसको, है ना। तो इस तरीके से ये आपका चैप्टर था जिसमें हमने बहुत कुछ देखा, पूरी लाइफ साइकिल देखी प्लांट की क्या है, कैसे खाना बनाती है, क्या क्या मेथड्स यूज करती है, कौन कौन से पार्ट्स उसमें इन्वॉल्व होते हैं, यस। और लास्ट में देखा किस तरीके से प्लांट्स, एनिमल्स एज वेल एज ह्यूमन बीइंग एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट है for their life, for their survival. Yes, so यही था आपका चैप्टर। होप सो दिस चैप्टर इज क्लियर टू यू एंड इंटरेस्टिंग टू यू। मजा आया पढ़ के, कुछ सीखा, अच्छा लगा? So that's very great. So thank you my dear learners for this class, for watching this class. Have a great day. Take care. Bye bye.